press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the second chapter of 8th Maharashtra Board History. The name of the chapter is Europe and India. So in this chapter, basically we will study what were the changes that happened in Europe in the 16th, 17th century or before that also. So let us begin. So during the modern period, the various happenings in Europe had impact on India. So how the happenings or how different changes in Europe impacted India. Let's take one example. You must be knowing that India was ruled by British or Britain for around more than 200 years. French also ruled in India. So whatever changes happened in Britain or whatever changes happened in Europe, in France or all other countries, that changes came to India. Like suppose in Britain there was development of technology, then that technology also came in India. So we can say that whatever changes that happened in India, whatever changes that happened in Europe, that impacted India. So during the modern period, various happenings in Europe had impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during that period. So it is very, very important to understand what were the changes that happened in Europe. So because of that changes had some impact on India. Like industrial revolution happened in Europe. We will be studying about industrial revolution later in this chapter. So what is basically industrial revolution? So new industries were set up in Europe. Big factories were set up. So for those factories we need raw material. Suppose we want to make क्लॉथ अगर बनाना है तो क्लॉथ बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें टेक्सटाइल बनाना है या फिर क्लॉथ बनाना है तो हमें कॉटन चाहिए. सो दैट कॉटन विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ फैक्ट्री वॉज इन यूरोप बट द रॉ मटेरियल वॉज कमिंग फ्रॉम इंडिया. सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे. दे यूज टू कलेक्ट रॉ मटेरियल दैट इज़ कॉटन और इंडिगो दैट इज़ यूज टू कलर द क्लॉथ दैट फ्रॉम इंडिया. देन दे यूज टू टेक दोज रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन. देन दे यूज टू प्रोसेस दोज गुड्स and then they used to bring the cloth and they used to sell that cloth in India. So whatever changes happened in Europe, that changes happened in India also, that had impacted India. So it is very, very important to understand the happenings that happened in Europe. So period of Renaissance. What is Renaissance? Renaissance is basically it is a word that means rebirth. So in Britain or in Europe, the society was taking a rebirth. The society was reborn, or new people came, new ideas started flourishing in Europe. New art, new culture, new traditions started in Europe. So because of this, that period when this new art, culture, literature, sculptures or big buildings were made, new paintings were made, drama was performed, that period is called as period of Renaissance. Renaissance is basically rebirth. मतलब एक सोसाइटी था जो पहले पुराने विचार में बिलीव करता था, तो कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि ये आपके जो विचार है वो गलत है, तो उन लोगों ने नए विचार लाए, नया बर्थ किया, सोसाइटी को रीबॉर्न किया, रीबर्थ किया. मतलब नए इन्वेंशंस किए या फिर नए पेंटिंग्स बनाए, नए पोएम्स लिखे. तो ये सब जो चेंजेस हुआ, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज, जब भी वो चेंजेस हुआ, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रेनाइसेंस. इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, द लास्ट फेज ऑफ मिडिवल पीरियड. सो यू मस्ट बी नोइंग दैट हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. जो पास्ट है, पास्ट मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडियन नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड का हिस्ट्री की बात करेंगे तो पास्ट मतलब क्या, जो हरप्पन टाइम था, जो हरप्पन सिविलाइजेशन था. ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे सिविलाइजेशन थे. इजिप्ट में सिविलाइजेशन था, ग्रीक, ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन थे. तो वो आएगा एंशंट में आएगा. मिडिवल पीरियड मतलब अभी जो हम थोड़ा पढ़ रहे हैं वो एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड है. और मॉडर्न पीरियड आएगा 17th सेंचुरी, वो टाइम से मॉडर्न पीरियड आएगा. So in the history of Europe, the last phase of medieval period, that is from 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. तो यहाँ ये टाइम पे नए चेंजेस हुए थे यूरोप में. During this period, reformation, religious freedom movement and geographical discoveries led to the foundation of modern era. अब रिफॉर्मेशन क्या होता है कि चेंजेस, जैसे पहले मैंने बताया कि सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स वेज में बिलीव करता था. Society was believing in orthodox thinking, like government and church that is in Britain basically people are Christians, people are following Christianity. तो वहाँ का जो चर्च है, that was also having control over people's life. तो वहाँ के जो चर्च है, वहाँ के जो प्रीस्ट थे, तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे. लोगों के ऊपर बहुत सारा उनका प्रेशर था. वो जैसे बोलेंगे वैसे लोगों को बिहेव करना पड़ता था, लोगों को फॉलो करना पड़ता था रूल्स. इवन किंग यूज टू फॉलो द चर्च ऑर्डर्स. So because of that there were many people who were harassing the people. मतलब वो गलत चर्च जो है, वो जो बाइबल में लिखा है
वो कॉमन पीपल को पढ़ने नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, गलत चरत बता के उनसे पैसा लेते थे या फिर उनको लूटते थे या उनको तंग करते थे। सो कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि ये गलत है, जो कि बाइबल में ऐसा बोला ही नहीं है या फिर ऐसा कहीं बोला ही नहीं है, लेकिन लोगों को तंग कर रहे हैं जो प्रीस्ट है या फिर जो किंग है। सो एक चेंजेस स्टार्ट हुआ, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। सो दैट इज़ रिफॉर्मेशन। देन रिलीजियस फ्रीडम मूवमेंट। रिलीजियस फ्रीडम मूवमेंट मतलब क्या, कि जैसे इंडिया में भी था कि सिर्फ पुजारी होते हैं, उनको ही प्रे करने का अधिकार है, बाकी कॉमन मैन दे कैन नॉट गो टू चर्च और दे कैन नॉट प्रे, और if even though they are going to church, then they should be dependent on the priest. Only priest can read the Bible. So because of that, people were forced to follow the priest orders. और priest उनको तंग करते थे, उनका प्रॉपर्टी का हड़प लेते थे, ऐसे अलग अलग चीज़ें करते थे। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ फ्रीडम मूवमेंट, कि रिलीजियस फ्रीडम मूवमेंट और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कि रिलीजन को रिफॉर्म करना है। जो कैथलिक है या फिर जो क्रिश्चियनिटी है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फॉलोअर्स है क्रिश्चियनिटी के 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है रोमन कैथलिक, जो रोमन कैथलिक जिसे बोलते हैं RC, जिनके चर्च अलग होते हैं, जिनके बिलीव्स अलग होते हैं, और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स मतलब क्या, जिन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो थिंकिंग था उसको प्रोटेस्ट किया। तो उनका नया एक ग्रुप स्टार्ट हुआ, जिन्होंने नए नए थिंकिंग चालू किया, नए नए चीज़ें इन्वेंट किया, नए नई चीज़ें सोचना चालू किया, और उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, पुराना चर्च था, उसे चैलेंज किया। So religious reform movement and geographical discoveries. So we will see what was the reason for geographical discoveries, और यूरोप के कंट्रीज़ ने कहाँ कहाँ विजिट किया, कहाँ कहाँ कौन से कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा किया, ये सब देखेंगे। Led to the foundation of modern era. Hence this period is known as age of Renaissance. So ये जो है 13th century to 16th century, that period is known as age of Renaissance. During this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development. तो ये जो पीरियड है उसमें आर्ट मतलब जो अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स है, जैसे पेंटिंग है या फिर सिंगिंग है, ऐसे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है। देन आर्किटेक्चर, नए नए बिल्डिंग्स बनाए, जो पुराने बिल्डिंग थे उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया तो नए बिल्डिंग्स बने। देन फिलोसॉफी मतलब क्या होता है, थिंकिंग, कि नए नए फिलोसोफर्स आए, जो पुराने विचार है वो उन्होंने बताया कि ये विचार गलत है, तो उन्होंने नए विचार रखे। सो दैट इज़ फिलोसॉफी। सो नए नए चेंजेस हुए। दैट वेर रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन। तो ग्रीक मतलब क्या, ग्रीस जो कंट्री है, और इटली का जो रोमन ट्रेडिशन है उसको रिवाइवल किया, उसको चेंज किया, मतलब पुराने जो विचार थे उसमें नए नए चेंजेस लाए उन लोगों ने। दैट गेव टू द मोमेंटम टू एन ओवरऑल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द रिनाइसेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म। व्हाट इज ह्यूमैनिटेरियनिज्म, कि ह्यूमन बींग्स आर इंपॉर्टेंट, कि ह्यूमन बींग्स के जो राइट्स है वो उसे मिलने चाहिए, ऐसी थिंकिंग आई। वॉज गिवन ग्रेट इम्पेटस, दैट इज ग्रेट इंपॉर्टेंस। देर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज ह्यूमन बींग। सो पहले कैसे एक दूसरे को, जो हायर अथॉरिटी पे रहते थे, जो चर्च में काम करते थे या फिर जो किंग था, वो जो कॉमन सिटीजन्स है उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता था। दोज पीपल वे ट्रीटेड एज स्लेव्स। देर वॉज बॉन्डेड लेबर, ज़बरदस्ती उनसे काम कराते थे। सो ये चेंजेस हुए, जो नए नए थिंकर्स आए उन्होंने बताया कि ये जो प्रथा है बॉन्डेड लेबर देन स्लेव्स, दैट एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। सो नाउ पीपल स्टार्टेड थिंकिंग और पीपल स्टार्टेड treating each other as human being, that equal citizens. Instead of religion, man became the center point of all ideologies. कि पहले रिलीजन जो बोला, जो धर्म में लिखा है, जो बुक में लिखा है वही सच है, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोगों ने चैलेंज किया। सो उन्होंने बोला कि मैन जो ह्यूमन बींग है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलीजन। सो नया आइडियोलॉजीज आया। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है, थिंकिंग होता है। किसी भी एक थिंकर का एक आइडियोलॉजी होता है, कि उसकी सोच होती है। तो उसने नए सोच रखी कि जो रिलीजन में लिखा है या फिर जो होली बुक में लिखा है वही सच नहीं होता है, तो उससे भी आगे कुछ है, या फिर जो होली बुक में जो लिखा है वो आप गलत तरीके से लोगों को बता रहे हो, लोगों को बहला रहे हो या लोगों को तंग कर रहे हो। सो दैट शुड स्टॉप। सो बिकॉज ऑफ दैट न्यू आइडियोलॉजी स्टार्टेड, और ह्यूमन बींग को बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगा, कि ह्यूमन बींग दे वर डिमांडिंग दैट ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, सो दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल सिटीजन्स। द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. Through knowledge, science, as well as different sections of art, we can observe discoveries of social of reform movement. कि अलग अलग जगह पे नए नए रिसर्च हुए। जैसे आपको पता होगा जो भी नए नए रिसर्च हुए थे साइंस में, जैसे न्यूटन का, ये सब यही टाइम पे हुए थे। देन साइंस, लिटरेचर, नॉलेज, सब ये जो नए नए थिंकर्स आए थे या नए साइंटिस्ट आए थे, वो यही टाइम पे उन्होंने नए नए डिस्कवरीज किए थे। द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रिनाइसेंस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग। कि वो टाइम पे जो भी लिटरेचर हुआ था, या फिर जो बुक्स लिखे गए थे, या फिर जो भी आर्ट है, आपको जो भी पेंटिंग्स दिखते हैं, उसमें वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, कि लोगों के इमोशंस कैसे थे, सेंटिमेंट्स कैसे थे, लोग क्या सोचते थे, वो आपको पेंटिंग में या बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन द लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पीपल। कि लिटरेचर जो बुक्स है
जो भी कुछ लिखना है वो लोकल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, तो ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ सके। अर्लियर देर वॉज अ लैटिन लैंग्वेज, ऐसे एक लैंग्वेज था वो जो उसमें ही लिखते थे, या फिर दूसरे कोई लैंग्वेज थे उसमें लिखते थे। तो जो कॉमन मैन है जिनको लैंग्वेजेस पढ़ने नहीं आता है वो, या उनको नहीं समझ में आता है, वो नहीं पढ़ पाते थे। सो जिनको पढ़ने आता है वो उनको गलत चीज़ें बताते थे। सो वो जो नए नए थिंकर्स आए थे, नए नए राइटर्स आए थे, उन्होंने सोचा कि अभी हम लोगों के लैंग्वेज में बुक्स लिखेंगे ताकि वो खुद डायरेक्टली पढ़ सके। During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. See, earlier books were handwritten, कि handwritten books लिखना है, और उसमें कुछ लोगों को वो हायर भी करते थे जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, जो फास्ट लिख सकते थे। उनको काम था कि वो बुक लिखते थे हाथ से। उसके बाद कुछ नए नए उन्होंने इन्वेंशन भी किए थे, जिसमें एक पेज होता था, वो पेज का वो एक डाई बनाते थे, जैसे कि साँचा होता है, जैसे डाई बनाते थे और उसको इंक में डिप करके प्रिंट कर देते थे दूसरे पेज के ऊपर। तो ऐसे नए नए पेजेस आते थे, बट दैट वाज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। और जो रिच लोग थे वो ऐसा प्रीफर नहीं करते थे प्रिंटेड बुक्स या डाई वाला। वो सोचते थे कि हम खुद लिखेंगे, लोगों से लिखवाएंगे जिनका हैंडराइटिंग अच्छा है। So because of that, very few pages were printed, very few books were printed. But in 1415 AD, Johannes Gutenberg, he was from Germany, तो उसने एक नया डिस्कवरी किया, उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। सो उसके बाद क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद, प्रिंटिंग प्रेस बना था जर्मनी में, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप तक आ गया, और कुछ टाइम बाद इंडिया में भी आया था। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जो बुक्स को प्रिंट करने का जो स्पीड है बढ़ गया। तो अभी बहुत सारे लोगों के पास बुक चले गए, लोग नए नए विचार पढ़ने लगे, उनको नए नई बातें समझ में आने लगी, और उनके लोकल लैंग्वेजेस में भी बुक्स प्रिंट होने लगे। सो बिकॉज ऑफ दैट, न्यू आइडियाज़, देन न्यू कंसेप्ट्स, नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मीन्स ऑल पीपल, रिच पुअर, एवरीबडी वॉज हैविंग अपॉर्चुनिटी टू रीड। क्योंकि पहले कैसे रिच लोग ही बुक्स रीड कर पाते थे, क्योंकि बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हैंड रिटन बुक्स थे। जैसे प्रिंटिंग प्रेस आया तो बुक का प्राइस कम हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इवन दो पर्सन इज पुअर और रिच, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रीड द बुक्स। Religious reform movement, the independent intellectual attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church. तो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स मतलब कौन होते हैं, जो थिंकर होते हैं, जो होशियार लोग बोलते हैं वो टाइम के लोगों ने रोमन कैथलिक जो चर्च था, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, जो बोलता था कि हम जो बोलेंगे वही करेक्ट है, वहाँ कुछ प्रीस्ट थे, कुछ जो जैसे पुजारी होते हैं मंदिर में वैसे प्रीस्ट थे, उन लोगों ने बोला कि हम जो बोलेंगे वही है, यही सही है, आपको वो फॉलो करना है। और कुछ लोग लोगों को फंसाते थे, लोगों को गलत बताते थे। सो जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो टाइम के, जैसे मार्टिन लूथर किंग, ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अभी ये जो भी सही बात बताई गई है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड अटैकिंग मतलब क्या, उनके ऊपर अटैक नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, उनके जो विचार है उसके ऊपर अटैक किया, उसके बारे में बोला। द क्रिश्चियन प्रीस्ट वेर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ पीपल एंड दे वेर इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स। कि अननेसेसरी रिचुअल्स जैसे इंडिया में भी होता है कि जो पुजारी होते हैं, या कुछ, सब नहीं होते, कुछ गलत चीज़ें बताते हैं, जैसे हर रिलीजन में होता है, क्रिश्चियनिटी में भी होता है, इस्लाम में होता है, हिंदुइज्म में होता है, सब रिलीजन में होता है। सो दे आर fooling people. So in every religion this happens, but there are some people who come to know that whatever these priests are doing, that is incorrect. So they started protesting. They looted the people in the name of religion. The movement that began against it is known as religious reform movement. कि religion को अभी reform करना है, ऐसा movement start हुआ. Due to the movement, human freedom and rationalism gained more importance. What is human freedom? कि human beings पहले एक बंधन में था कि जो preach बोलेगा वही होगा. Now he started thinking independently. So उसमें freedom मिला उसे. And rationalism क्या होता है कि scientific way से think करो, scientific way से सोचो. जैसे जो भी blind faith होता है, जो हम अंधश्रद्धा रखते हैं, वो कैसे होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये अभी हमें सोचना है। ऐसे लोगों का थिंकिंग था कि साइंस इसके पीछे है क्या, साइंटिफिक इसका कुछ आंसर है क्या, ऐसे सोचने लगे लोग। Now geographical discoveries. In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered the Constantinople, इस्तानबुल। अभी हम देखते हैं कि इस्तानबुल कहाँ है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और ये ओटोमन टर्क मतलब आज का जो टर्की कंट्री है, उन लोगों ने वहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल जो सिटी है, आज कॉन्स्टेंटिनोपल नाम नहीं है, नाउ द नेम ऑफ द सिटी इज इस्तानबुल। सो इस्तानबुल के ऊपर इस्तानबुल को कैप्चर किया। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंजेस आया और नए नए रूट्स लोग डिस्कवर करने लगे। उसका रीज़न क्या है अभी हम देखते हैं। तो पहले वर्ल्ड का मैप देखते हैं कि ओटोमन टर्की या फिर ये जो इस्तानबुल कहाँ है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज़ वर्ल्ड मैप, और आपको पता होगा कि यहाँ एशिया है, दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ अफ्रीका। तो हम जूम करते हैं,
अगर आप देखोगे तो ये टर्की है, तो यहाँ एक सिटी है इस्तांबुल। इस्तांबुल के पास एक छोटा सा जगह है, छोटा सा ओपनिंग है, जिसे आप क्रॉस करके इस सी में जा सकते हो और अब ये कंट्रीज़ में जा सकते हो। लेकिन ओटोमन टर्की मतलब ये टर्की कंट्री ने इस्तांबुल कैप्चर किया, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया। अभी मैं दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ये टर्की कंट्री है और टर्की कंट्री के पास ये सिटी है इस्तांबुल। ये टर्की या फिर ओटोमन अम्पायर, ये जो कंट्री है उसे ओटोमन अम्पायर बोलते थे, ओटोमन टर्क्स बोलते थे, उन लोगों ने इस्तांबुल को कैप्चर किया। सो बिकॉज ऑफ दिस इस्तांबुल, पहले यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते थे, मतलब सपोज़ मुझे एजेंसी से ब्लैक सी में जाना है, शिप के थ्रू जाना है, मुझे गुड्स लेके जाना है, यहाँ आपको छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है, यहाँ से मैं यहाँ जाके वापस इस ओपनिंग से बाहर निकल सकता था और ब्लैक सी में जा सकता था। लेकिन टर्की ने क्या कर दिया, ये जो रास्ता है बंद कर दिया। हमने देखा ये एशिया है और ये यूरोप है, तो मैंने आपको बताया ये टर्की कंट्री है, यहाँ इस्तांबुल था, तो मैं एशिया से यहाँ से जो यहाँ होके जा सकता था, तो ये रास्ता बंद हो गया। तो अभी यहाँ की जो कंट्रीज़ है इन लोगों ने नया रास्ता ढूंढना चालू कर दिया, मतलब ये शॉर्टकट हो गया एशिया में आने के लिए, ये रास्ता बंद हो गया। तो अभी इन लोगों ने सोचा कि चलो अभी नया रास्ता ढूंढना है। तो नया रास्ता ढूंढने के लिए बड़े बड़े सेलर्स होते थे कि जो जैसे आपने सुना होगा नाम वास्को ड गामा, कोलंबस, ऐसे लोगों ने गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट था, वहाँ के किंग का सपोर्ट था, किंग उनको पैसा देता था और वो नए नए रूट्स ढूंढते थे। मतलब उनको पता था कि इंडिया, चाइना, ये जो एशियन कंट्रीज़ है यहाँ बहुत सारा वेल्थ है, यहाँ बहुत सारा रिसोर्सेस है, स्पाइसेस है या फिर अच्छा फूड ग्रेन्स है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ फिर सिल्क है, क्लॉथ अच्छे मिलते हैं, तो ये लोग यहाँ ट्रेड करते थे पहले। लेकिन ये रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ से डायरेक्टली जो आते थे ये बंद हो गया। सो नाउ दे वेर इन सर्च ऑफ न्यू रूट्स। तो ये जो सेलर्स है इन लोगों ने नया रूट ढूंढना चालू कर दिया। पहले इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, तो उनको पता नहीं था कि इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो उनको पता था कि इंडिया ये ईस्ट में है, तो उनको इतना भी पता था कि वर्ल्ड कैसे राउंड है। तो कोलंबस ने क्या सोचा, कोलंबस जो डिस्कवर था, जिसने नया रूट ढूंढने का कोशिश किया, उसने सोचा कि अगर मैं इस तरफ से जाऊंगा तो मुझे इंडिया मिल जाएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ से इस तरफ जाना चालू कर दिया और पहुँच गया अमेरिका। अमेरिका का यहाँ जो कोस्टल आइलैंड्स है कुछ, वहाँ पहुँच गया। तो उसने नया कंट्री ढूंढा, दैट इज़ अमेरिका। ऐसे ही कुछ लोगों ने सोचा चलो यहाँ से, उन्होंने स्टार्ट किया और वो जो सदर्न टिप है अफ्रीका का, जिसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचे। उसके भी आगे जो वास्को ड गामा है उसने केप ऑफ गुड होप के आगे जाके इंडिया तक आ गया, कैलीकट तक, जो केरला का जो सिटी है कैलीकट, वहाँ तक आ गया। तो ऐसे नए नए रूट्स ढूंढने लगे। इसका रीज़न क्या था कि उनको इंडिया या फिर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है या फिर जो यूरोप एशियन कंट्रीज़ है वहाँ आना था, इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना था। कॉन्स्टेंटिनोपल का जो रास्ता बंद हो गया, शॉर्टकट बंद हो गया, तो उन लोगों ने नए सी रूट्स ढूंढना चालू कर दिया। और इनको यहाँ के जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन का गवर्नमेंट है या फिर फ्रांस का गवर्नमेंट है, जो अलग अलग गवर्नमेंट है यूरोपियन कंट्रीज़ के, उनका सपोर्ट था। तो उन लोगों ने नए नए सी के जर्नी किए और नए नए रूट ढूंढने का कोशिश किया। ये अभी हम देखेंगे कौन कौन कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे थे। So in 1415 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, Istanbul, which was capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through the city. जैसे मैंने बताया, एशिया और यूरोप में अगर जाना है तो ये सिटी से जा सकते थे। Since the Turks blocked this route, there was need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. This led to the new phase of geographical discoveries. अभी कौन कौन से geographical discoveries हुए? During 15th century, European sailors went on expedition or searching to discover expedition मतलब क्या, उन लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया, वॉयेज स्टार्ट किया कि उन लोग ढूंढना चालू कर दिया कि नया जगह ढूंढना है या इंडिया को ढूंढना है। एक्सपेडिशन टू डिस्कवर सी रूट्स टू इंडिया। इन 1487 AD, Bartholomew Dias, a Portuguese sailor, began his journey in search of India, but reached the tip of African continent. जो मैंने बताया अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट टिप है, दैट इज कॉल्ड एज केप ऑफ गुड होप। In 1492, Christopher Columbus sent on his journey to India by sailing towards the west. मतलब वो सोच रहा था कि इंडिया में राउंड मार के चले जाऊंगा तो इंडिया मिल जाएगा। Set on his journey to India by sailing west, but reached on the eastern coast of continent of America. वैसे उन लोगों को नया कॉन्टिनेंट मालूम पड़ा कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट था, तो उन लोगों ने उसे डिस्कवर किया। In 1498 AD, Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reach the Indian coast of Calicut. So Calicut is in Kerala, तो केरला तक पहुंच गया। तो ऐसे वास्को ड गामा ने 1498 AD में इंडिया को डिस्कवर किया। तो ये पोर्चुगीज सेलर था। तो उसके बाद उन लोग को पता चला कि इंडिया का ये सी रूट है। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, पोर्चुगीज़ आए,
फ्रेंच आए, डच आए, ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया में आए और वो उन्होंने अलग अलग जगह पे अपने कॉलोनीज़ बनाए। तो आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इन द सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स. I hope you must have understood this first part. If you have understood, you can share this video with your friends and you can subscribe for more videos. Thank you for watching.